سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خاص و عام جو عبادت کرتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ تمام تر عبادات بیسڈ ہیں لطیفہ لسان، زبان سے۔ لطیفہ لسان، زبان سے عبادات، زبان سے ذکر اذکار، زبان سے تسبیحات، معمولات۔ اللہ کے ولیوں نے جو رستہ ہمیں شفقت فرمایا، ہم پر احسان فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، فرمایا کہ دل سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب بات لطیفہ لسان سے آگے لطیفہ قلب پر چلی گئی۔ جن کا وہ سبق پک گیا، مرشد کریم نے فرمایا اب لطیفہ روح کا سبق بھی کیا کرو۔ جس کا لطیفہ روح کا سبق پک گیا، مرشد کریم نے فرمایا اب لطیفہ سری کا سبق کیا کرو۔ لطیفہ سری کے بعد لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفسی، لطیفہ قالبی، 7 لطائف۔ اچھا، یہ جو لطیفہ نفسی ہے اس کی بھی 4 سٹیجز ہیں، 4 حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ لطیفہ قالبی بھی سلطان الاذکار ہے اور مرکب ہے 4 چیزوں کا: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی مرشد کریم نفی اثبات کا سبق دیتے ہیں، کلمہ طیبہ کا سبق دیتے ہیں، اور پھر سٹیجز بائی سٹیجز 36 مراقبات کراتے ہیں۔ یہ اوور ہال سٹرکچر ہے سلسلہ نقش بندیہ عالیہ شریف کا۔ مختصر سا میں نے کیا، بات وہیں سے جہاں سے شروع کی تھی وہاں پہ آتا ہوں۔ جب ہمیں زبان سے ذکر کرنے کو ملتا ہے، صرف ذکر پر آج بات ہوگی، باقی عبادات کی نہیں۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جہاں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسی پر انشاءاللہ سٹک رہوں گا۔ جو ذکر ہے، جب آپ زبان سے ایک بار اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ کے نام مبارک کے 4 حروف ہیں: الف، لام، لام، ہے۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ اللہ پکارتے ہیں زبان سے تو آپ کو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ اکرام الکاتبین نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی اس نے ایک بار اللہ پکارا، 40 نیکیاں درج ہوگی۔ آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ تھوڑے سے انہینس کر دیے جاتے ہیں، جو نسبت والے ہو جاتے ہیں، جو سلسلہ نقش بندیہ میں مرید ہو جاتے ہیں، جو سلسلہ نقش بندیہ کے حلقے میں شامل ہو جاتے ہیں، مرشد کریم ان کو سبق عطا فرماتے ہیں کہ اب بھئی تم نے زبان کے علاوہ دل سے بھی ذکر کرنا ہے۔ کیسے؟ دل کی تصوری زبان سے اللہ 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 پکارنا ہے۔ دل کو مانیٹر کرنا ہے کہ بھئی یہ دھک دھک نہیں کر رہا، یہ اللہ 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 پکار رہا ہے۔ یہی اس کی تسبیح ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو، دل کو یہ تسبیح یاد دلانی ہے، اور جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی
जिक्र की बरकत से आपका कल्ब जारी हो जाएगा। मुर्शिद करीम की तवज्जो से ये सबक जारी हो जाएगा, कल्ब जारी हो जाएगा। फिर जब फैजान आता है तो अल्लाह की बारगाह से, फिर आपके और मेरे आका व मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, फिर पीराने कबार की बारगाह से, चलता 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 हमारे मुर्शिद करीम की तवज्जो से, उनके लतीफ़ा कल्ब से हमें यह हिस्सा नसीब होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे बाप की विरासत उसके बेटे को मिल जाए, जैसे बाप का डीएनए उसके बेटे को मिल जाता है, जैसे बाप की जीन्स बेटे की जीन्स से मिलती हैं, इसी तरह लतीफ़ा कल्ब का जो फैज़ उसके मुर्शिद के सीने में, उसके मुर्शिद के कल्ब में होता है, वही आगे उसके मुरीदीन में ट्रांसफर हो जाता है। अब जब वो दिल से अल्लाह अल्लाह करना शुरू करता है तो अब उसे कितनी नेकियां मिलेंगी। बड़ी कीमती बात है, इस पे गौर कीजिएगा प्लीज। अब उसे कितनी नेकियां मिलेंगी। भाई दिल तो एक ऑर्गन है, एक आला है जिस्म का, जो एक तरफ से खून उठाता है दूसरी तरफ फेंक देता है, ट्रांसफर करता है। एक तरफ से उठाता है दूसरी तरफ प्रेशर कर देता है, एक तरफ से उठाता है दूसरी तरफ आगे धकेल देता है। वही खून उसकी पूरी रगों में, शरियानों में, वेसल्स में, रोम रोम में, लूम लूम में जाता है, हर एक सेल्स तक जाता है। ये जितने भी उसके ऑर्गन्स के या बॉडी के या स्किन के सेल्स हैं, हर एक में जाता है। उसमें जब रिफ्रेश होता है, वहां तक पहुंचता है, तो पुराने सेल्स जो होते हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, नए सेल्स जो है ना वो जगह ले लेते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ब्लड सेल्स इंसान की बॉडी में रोजाना बनते हैं और खत्म होते हैं। अब वो करता क्या है, अल्लाह, अब दिल ने कहा अल्लाह, खून उठाया आगे फेंक दिया, अल्लाह खून उठाया आगे फेंक दिया, अल्लाह खून उठाया आगे फेंक दिया। अब वो खून जो हमारी रगों में, शरियानों में दौड़ रहा है, उसमें अल्लाह का नाम मुबारक शामिल हो गया। वेसल्स में, शरियानों में, रगों में, लू लू में, हर एक ब्लड वेसल्स में, हर एक नए सेल में जाके जब उसने अल्लाह अल्लाह की पुकार शुरू की, तो उसके लू लू से आवाज आती है फिर अल्लाह के नाम मुबारक की। का लू लू, उसके जिस्म का बाल बाल भी अल्लाह अल्लाह पुकार रहा होता है। इंसान का दिल कमोपेश 72 टाइम 1 मिनट में धड़कता है, और हर धड़कन में उसने अल्लाह का नाम मुबारक शामिल किया। अब वो हर धड़कन खून लेके हर सेल्स तक पहुंची। कितनी बार अल्लाह के नाम मुबारक की पुकार आई होगी, चले कैलकुलेट करते हैं। 40 नेकियां मिलती हैं एक बार अल्लाह पुकारने से। 1 मिनट में 72 टाइम दिल ने अल्लाह पुकारा, इसका मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 72, ये 1 मिनट की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं हम। अब दिल के अल्लाह पुकारने से जो पूरे लू लू से, ब्लड सेल से जो आवाज आई, वो अल्लाह के नाम मुबारक थी। जो जिक्र पूरे जिस्म में गर्दिश कर गया ब्लड की शक्ल में, वो अल्लाह के नाम मुबारक का जिक्र था। आज की साइंस ने ये बात समझना आसान कर दी कि इंसान का जिस्म 3.5 करोड़ ब्लड सेल्स जुड़े हुए हैं और ये जिस्म बना हुआ है। यानी कमोपेश 3.5 करोड़ ब्लड सेल्स, 40 मल्टीप्लाई बाई 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 3.5 करोड़। अब जरा आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि 1 मिनट की इबादत कितनी हो गई, और जो हर दम अल्लाह का नाम पुकारते रहते हैं। मैंने वो आयत मुबारक सुनाई थी ना कि 29वें पारे की सूरह मुज़म्मिल, वज़्कुरिस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतील, हर वक्त अपने रब का नाम पुकार। और जो अल्लाह के नेक बंदे, जो उसके साले बंदे, जो उसके जाकिर बंदे, जो उसके अहले करम बंदे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह दिल से पुकारते होंगे, उनकी नेकियां कितनी लिखते होंगे फरिश्ते।
फरिश्ते आजिज आ जाते हैं। क्यों? बात नेकियों से आगे निकल गई, बात अजर सवाब से आगे निकल गई है। अब वो इन्फिनिटी ला तादाद जो गिनी ना जा सके उसमें शामिल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि अब इसका अजर सवाब क्या है, अब इसको कितनी नेकियां देंगे? अल्लाह फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। भाई अल्लाह तबारक व तआला का हम जिक्र करें, बात समझ आती है। हम मखलूक हैं, वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो माबूद है, हम तो अबद हैं। वो तो इस शान के लायक है कि उसकी इबादत की जाए, वो तो इस शान के लायक है कि उसका जिक्र किया जाए, पर वो रब होकर हमारा जिक्र करे, हमें याद करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ा करम है। और फिर हजूर सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला सुल्तानुल आरफीन हुए। अब जरा इन सारी कड़ियों को ना आपने जोड़ना है, इंशाल्लाह मैं भी आपकी मदद करूंगा। आप फरमाते हैं मुशद्दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूं। सुल्तानुल आरफीन, वक़्त के सुल्तान, बल्कि तमाम आरफों के सुल्तान, आप फरमाते हैं मुर्शद दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूं। अब जिस अल्लाह के वली पर इनामो इकराम की ये बारिश, नेकियां सवाब का एक फ्लड, एक समंदर, अनवारात उस पर बारिश की तरह बरस रहे हैं, तजल्लियात का मस्कन है उसका सीना, उसका कल्ब। अब ऐसे अल्लाह के वली की जियारत, ऐसे अल्लाह के वली की जियारत के बारे में सुल्तान बाहू सरकार फरमाते हैं मुर्शद दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूं। किसी आलम दीन ने, किसी मुफ्ती ने चैलेंज नहीं किया इस बात को आज तक। अच्छा चलें, ये तो कोई 550-600 साल पहले की बात होगी। उससे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, किसी और अल्लाह के वली ने कुछ ऐसा कहा हो। मौलाना रूम, बहुत बड़े मौलाना जिनका फतवा पूरी दुनिया में चलता था, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर अज 100 साला इबादत। किसी अल्लाह के वली की सोबत में गुजारा हुआ एक लम्हा 100 साल की बगैर दिखावे की, बगैर रियाकारी की इबादत से बेहतर है। इतने बड़े मौलाना और इतनी बड़ी बात, किसी आलम दीन ने, किसी मुफ्ती ने इस बात को चैलेंज नहीं किया। अच्छा, कुरान से समझते हैं इस बात को। सूरह काफ गालिबन आयत नंबर 18 से ये तर्जुमा शुरू होता है, ये आयत मुबारक शुरू होती है, आप भी मुताला कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और वो जो मेरे बंदे हैं, वो कौन से मेरे बंदे, आगे जाकर जिक्र आएगा। और वो जो मेरे बंदे हैं, जब तुम उनकी सोबत में आ जाया करो तो उनके चेहरों से अपनी नजरें ना हटाया करो। मफहूम यही है, कमी पेशी अल्लाह पाक मुझे भी माफ फरमाए। और जब तुम मेरे बंदों की महफिल में, सोबत में, संगत में, कुर्बत में आ जाया करो तो उनके चेहरों को तकते रहा करो, उनके चेहरों से नजरें ना हटाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के ख्वास्तगार हो जाओ, कहीं दुनिया में बहक जाओ, भटक जाओ। और ऐसे लोगों की पैरवी मत करना जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके दिलों को अल्लाह ने अपनी याद से आबाद फरमाया,
उनकी सोबत में जब तुम आया करो तो उनके चेहरों को तकते रहा करो, उनके चेहरों से नजरें ना हटाया करो। जो साथी बहुत पुराने नए साथी सब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पार्टिसिपेंट हैं जो इस वक्त भी, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब हमारी महाफिल जिक्र होती हैं तो हम कहते हैं यार सामने देखो, चेहरे की तरफ देखो। ये कर्म कोई मेरा नहीं है बाबा, ये तो कर्म अल्लाह की बारगाह से है, ये तो कर्म अल्लाह के जिक्र का है। ये अनवारात, ये तजलियात तो उसी बारगाह से नसीब होती हैं जिसको भी होती हैं, आपको भी, मुझे भी, और आइंदा भी जो होंगी वहीं से आएंगी। मेरी क्या मजाल है। हम तो खुशबख्त हैं इस सेंस में कि हम अल्लाह वालों से निस्बत रखते हैं, हम उनके हलकों में शामिल हैं, हम उनसे निस्बत लिए हुए हैं, हम उनके नौकर हैं, उनके ताबे हैं। ये अल्लाह वालों की बात हो रही है, जिन पर अल्लाह का करम उतरता है, उनकी सोबत में जब जाओ तो उनके चेहरों को देखते रहो। मौलाना रूम भी तो यही फरमा रहे हैं कि यक ज़माना सोहबत बाविया, अल्लाह के वलियों से सोबत लें, तवज्जो लें, मोहब्बत से उनके करीब बैठ जाएं, थोड़ा सा वक्त भी मिले तो जरूर बैठ जाएं। जहां हल्काए जिक्र सजे, जहां भी आप हल्काए जिक्र देखें, कोई भी साहिब तवज्जो, साहिब निगाह, साहिब खिलाफत, साहिब इरशाद, साहिब तरीकत कोई भी मिले, उससे सोबत लें, उनकी तवज्जो में थोड़ी देर बैठ जाया करें। वो पूछे यहाँ में किधर आए हो, उनको जी हुजूर सलाम अर्ज करने आया हूँ, बस आपकी खिदमत में थोड़ी देर वक्त गुजारने। और एक और बात हदीस मुबारक जिसका मफहूम यह है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने असहाबा को फरमाया कि सुन लो भाई, जब भी तुम्हारा कभी जन्नत के बागात से गुजर हो तो वहां कुछ देर के लिए रुक जाया करो, ठहर जाया करो, कुछ फल, कुछ मेवे खा लिया करो, चख लिया करो। साहबा हाथ जोड़ के आगे हो गए, हजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा माल, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान, माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी जानें आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों कर मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि हमारा जन्नत के बागात में से गुजर हो, और ना सिर्फ बागात में से गुजर हो, हम अपनी मंशा के मुताबिक वहां रुक जाएं, ठहर जाएं, मेवे और फल खा लें। या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया कुर्बान जाए वाली कायनात आपके और मेरे आका और मौला हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, जिसका मफहूम यह है, आपने फरमाया जहां कहीं भी तुम हल्काए जिक्र सजा हुआ देखो, जहां कहीं भी तुम महफिले जिक्र पाओ, उनमें जाया करो, वहां कुछ देर के लिए बैठा करो। वो ऐसे ही है जैसे कि जन्नत के बागात, उसमें बैठना ऐसे ही है जहां आप जन्नत में रुक गए। वहां बैठकर जिक्र अज़कार करना, जो भी जिक्र वो कर रहे हैं, जो भी तरीका अंदाज है उनका जिक्र करना, ऐसे है जैसे तुमने जन्नत के बागात में से मेवे और फल खा लिए, चख लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हैं कि जिक्र क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये जो जिक्र की महफिल हैं, ये जो हल्का जिक्र सजते हैं, ये क्या हैं? और क्या समझते हैं कि ये जो जिक्र हम जुबान से करते हैं, फिर दिल से करने को कहते हैं, फिर मकाम रूह का जिक्र शुरू कराते हैं, फिर अगले असबाक कराते हैं, फिर दीगर असबाक, फिर और आला असबाक, ये क्या है? ये कौन सा रूहानी सफर है? ये बंदा किधर चला जाता है? उसका मकाम क्या हो जाता है? अल्लाह अकबर। जितने भी औलिया इकराम को, अल्लाह वालों को मकाम मिले, बेशक अल्लाह के करम से मिले, बेशक आपके और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से मिले। बेशक उनको ये मकाम अल्लाह के जिक्र से नसीब हुए, और जिनको ये मकाम मिले उनके बारे में हजूर
सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूँ। और एक और बात, दिल के हवाले से भी एक शेर, आप मैंने ऐसे शेर याद किए हुए हैं। आप फरमाते हैं, मुर्शद मैनू ऐसा सबक पढ़ाया ते बिन पढ़िया ही पढ़ीवे हो। हाय, मुर्शद ने ऐसा दिल में अलिफ अल्लाह चंबे की बूटी, वो सुना होगा ना जी आपने, मेरे मन विच मुर्शद लाई हो। ऐसा सबक मेरे मुर्शद ने तवज्जो फरमाया मेरे कल्ब पर कि जब वो जारी हुआ तो मैं पढ़ भी नहीं रहा और वो पढ़ा जा रहा है। मैं सो रहा हूं और मेरा कल्ब जिक्र में मशगूल है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं, मेरी जुबान मसरूफ है, पर मेरा दिल अल्लाह के जिक्र से जारी है। सुबहान अल्लाह। हजूर मौलाना रूम फरमाते हैं कि यक जमाना सोहबत बावलिया बेहतर अज सद साला इबादत बेरिया। वो इबादतें, वो गिरे, वो रूहानी कब्ज नहीं खुलती जब तक किसी वली की निगाह में ना जाएं, जब किसी अल्लाह वाले की सुबत ना इख्तियार करें, जब किसी साहिब इरशाद से आप निस्बत ना हासिल कर लें, कनेक्शन ना ले लें। देखिए ना जी, बड़ी सादा सी मिसाल है, ये ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, बल्ब लगे हुए हैं, जल रहे हैं, लेकिन उतनी देर ही जलेंगे ना जब तक इनका स्विच के साथ कनेक्शन है। आप यहाँ शैंडलियर, एक खूबसूरत शैंडलियर ला के लगा दें, जलेगा, खूबसूरत रोशनी देगा, लेकिन उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें स्विच से, क्या वो जलेगा? जितना मर्जी कीमती हो, नहीं जलेगा। और अगर हम स्विच की बात करें तो वो तो एक टूल है दरमियानी। असल में तो जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच को मिल रही है वो तो मीटर से मिल रही है, मेन स्विच से मिल रही है। और मेन स्विच या मीटर भी एक टूल है, वो खुद तो बिजली जनरेट नहीं करते, वो तो बाहर कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं। ट्रांसफार्मर किसी न किसी पावर प्लांट से, किसी स्टेशन से, पावर स्टेशन से ले रहा है। पावर स्टेशन कहीं ना कहीं किसी ग्रेडो स्टेशन से ले रहा है, और ग्रेडो स्टेशन कहीं ना कहीं आगे जाके अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का तो वहां से ले रहा है, अगर कोई डैम है तो वहां से ले रहा है, जहां बिजली बन रही है वहां से ले रहा है। ये एक चैनल है, ये एक कनेक्शन है जो सब तरफ से घूम घाम के हम तक आता है और फिर हमारी ट्यूबें जल रही। इसी तरह रूहानियत है। मैंने निस्बत अपने मुर्शिदों से ली, उन्होंने अपने मुर्शिदों से ली, उन्होंने अपने मुर्शिदों से ली। ये सिलसिला चलते 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 पीराने कबार तक, असहाबा इकराम तक, फिर आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया। और फिर अल्लाह तबारिक व तआला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि ऐ महबूब, ये जो दरख्त के नीचे बैठा तू इनसे बैत ले रहा था, इनके हाथों पर तेरा हाथ नहीं था, मेरा हाथ था। बैत रिजवान। अल्लाह अकबर। क्या सिलसिला है ये, सब करम अल्लाह की बारगाह से आता है। अब ज़ाहरी मिसाल देता हूं, अगर आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे या किसी डैम पे चले जाएं और उन्हें जाके कहें जी कि मैंने नया घर बनाया भाई, मुझे कनेक्शन चाहिए बिजली का, तो वो क्या आपको कनेक्शन देंगे? नहीं। वो कहेंगे भाई हमारा कनेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो बिजली बनाने वाले हैं, हमारी कंपनी, हमारी फर्म तो बिजली बनाती है और हम बना के आगे सप्लाई कर देते हैं। अगर तुम्हें कनेक्शन लेना है तो अपने जो लोकल एरिया के, जो आपके टाउन के या शहर के जो लोकल एरिया के जो सप्लायर हैं बिजली के, उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें जी मेरा एक नया कनेक्शन है, लगा दें। वो आएंगे, एक नया मीटर भी लगा देंगे, मेन स्विच भी लगा देंगे, आपकी बिजली चालू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी, जारी सारी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ये कहे मैं अल्लाह की बारगाह से डायरेक्ट ले लेता हूं, मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अप्रोच कर लेता हूं, तो भाई कैसे मुमकिन है? अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये वो सबक हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। कुरान सीख रहे हैं ना जी, किसी मौलवी साहब से, कारी साहब से, किसी इमाम साहब से आप जाके सीखेंगे। मेडिकल सीखनी है, किसी मेडिकल कॉलेज से जाके मेडिकल के प्रोफेसर से सीखेंगे। इसी तरह रूहानियत सीखनी है, किसी अल्लाह वाले से सीखेंगे।
ये एक सिलसिला है, सिलसिला बस सिलसिला। कोई कहे मैं खुद ही कर लूंगा जी सारा, नहीं मेरे भाई, नहीं होता। मेडिकल की किताबें सारी पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन भी मौजूद हैं, किताबें बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं, बैठ के आप पढ़ भी लें। इंग्लिश है ना, इंग्लिश जुबान अगर आप सीख ले तो आप सारी किताबें पढ़ ले। पढ़ ली मैंने किताबें, क्या आप डॉक्टर बन गए? नहीं, आप डॉक्टर नहीं बने। आप जब तक नहीं बनेंगे, जब तक आप मेडिकल में दाखिला ना लें, जब तक आप मेडिकल का इम्तिहान ना दें, जब तक आप मेडिकल की डिग्री ना हासिल कर लें, फिर अब आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं यस DR, डॉक्टर। अदरवाइज सारी मेडिकल की किताबें पढ़ के अगर आपने अपने नाम के साथ DR लिख लिया ना, तो ये इलीगल है, इलीगल है। क्यों? अभी आपके पास डिग्री नहीं है। और कितने लोग हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, बल्कि ये हमारे मुशाहिदे में ये आम है ये बात। अक्सर लोग अपने नाम के साथ लिख लेते हैं मंसूर अहमद नक्शबंदी, मोहम्मद करीम कादरी, सोहरवर्दी, तो कैसे लिख लेते हैं? खैर, हम इस आर्गुमेंट में नहीं जाते। मुख्तसर ये अर्ज करूंगा, बल्कि आप सब जितने भी सामीन और नाजरीन सुन रहे हैं और जो इसको मीडिया पर बाद में सुनेंगे देखेंगे, सबके लिए यही पैगाम है जो मैं देने लगा हूं। आप सब मेरे पीछे कहें, कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से इस जिक्र की इजाजत है। दिल की तसव्वुरी जुबान से ये जिक्र करते रहना है, और मजीद अगर इसके लताइफ के जो असबाक हैं, जो रूहानी असबाक हैं, वो आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, उसकी फीज़ो बरक़ात हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमसे राब्ता कायम करें। इसी यूट्यूब में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इसी जो सैफ़ी फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें हमारे एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी मौजूद हैं, आप वहाँ भी राब्ता कायम कर सकते हैं। ये ज़िक्र की बरकत, ये ज़िक्र की दौलत मुर्शिदों की तरफ से ड्यूटी है हमारी पूरी दुनिया में फैलाने की। आपने सुना है, आप आगे पहुँचा दें। आज आपने ये सीखा है, आगे बाँट दें, रिकमेंड कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला सब मुस्तफ़ीद होंगे। जो भी करेगा, उसकी वजह क्या है? एक छोटी-सी बात, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ज़िक्र करते हैं, दुआए खैर होगी। ज़िक्र किसी की मिरास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान में हर खुश्क व तर चीज़ मेरी तस्बीह कर रही है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कोई कहे कि नहीं जी नहीं, बस ये तस्बीह करना, ये ज़िक्र करना मेरा काम है और किसी को नहीं देना, ना किसी को दे सकता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। आप सबको ये ज़िक्र का पैगाम दें, भाई अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह पसंद फरमाता है जो उसको याद करते। हाँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, द दुरूद पाक पढ़ें, दीगर मामूलात तस्बीहात आप जो करते हैं करें, लेकिन ज़िक्र भी किया करें, चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते बस अल्लाह को याद किया करें। अच्छा, कुछ लोगों का ये गुमान है, ख़्याल है कि भई ये कोई सुन्नियों का तरीका है। तो नहीं भाई, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, सबका यही तरीका है। हम अल्लाह को तो मानते हैं। अल्लाह का ज़िक्र करना है, किसी के पीर का ज़िक्र थोड़ी करना है, किसी के शेख या हादी का ज़िक्र थोड़ी करना है, किसी के वालिदैन बुज़ुर्गों का नाम थोड़ी है अल्लाह, माज़अल्लाह। ये तो आपके और मेरे रब का नाम है और हम सब इस पर मुत्तफ़िक हैं। कोई अहले हदीस हो, कोई देवबंदी हो, कोई नक्शबंदी हो, कोई जनाब बरेलवी हो, किसी भी मसलक से हो, हमारे डिस्प्यूट अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह के नाम मुबारक पर हम सब मुत्तफिक हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। शरीयत पर हम एक हैं, वहदानियत पर हम सब का ईमान और यकीन है, और अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका नाम सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं और अल्लाह के नाम से बड़ा किसी का नाम नहीं। ये आपके और मेरे रब का नाम है। बस जपते रहें, पुकारते रहें, याद करते रहें, उसका नाम लेते रहें। इसकी फिज़ो बरक़ात, इसके समरात खुद ब खुद आपको नसीब होंगे।
खुद बखुद नसीब होंगे इंशाअल्लाह ताला। हर कोई इससे फैज़याब होगा। दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें, बलाएं, बीमारियां, कबाहतें, रुकावटें, बंदिशें, आसेब, सहर, हर चीज़ दूर होती है अल्लाह के नाम मुबारक से। तमाम खैर व बरकत जो है इससे आती है। रोज़गार में फरावानी है, घर में इत्मीनान और सुकून है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह खुद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। नहीं मिलता सुकून कब? मगर ज़िक्र अल्लाह से। तो कितनी बड़ी बात है कि बंदा इत्मीनान में हो, सुकून में हो। ये सुकून दायमी है, याद रखिएगा। ये सुकून सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, या ये सुकून ये कोई टेम्परेरी नहीं है कि अच्छा भी 1 महीना आया बस उसके बाद नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सुकून दायमी है, इत्मीनान दायमी है। अल्लाह तबारक व तआला जब आप जिक्र की बरकत से जिक्र कर करके आपके दर्जात बुलंद होने शुरू हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रोज़े महशर भी जो मेरे दोस्त होंगे, जो वली होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, उनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं होगा, वो इत्मीनान में होंगे। तो ये जो इत्मीनान है, ये एक बार हासिल हुआ तो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाता। फिर दुनिया में भी इत्मीनान, कब्र में भी इत्मीनान और हशर में भी इत्मीनान। अल्लाह पाक आपका और मेरा खात्मा इत्मीनान पर फरमाए, कलमे और ईमान पर फरमाए, हमारे सीनों को अपने नूर से कुशादा फरमाए, जिक्र की हलावत नसीब हो आपको भी और मुझे भी, हमारी औलादों को भी, हमारी आने वाली नस्लों को भी। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि या रब्बे ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह तेरे नाम मुबारक का जिक्र करते रहे, हक अदा नहीं किया, कोशिश की है, अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जितने भी साथी तेरे जिक्र के लिए आए, फैमिलियाँ आई, जहाँ जहाँ भी ये बैठे हैं अपनी फैमिलियों के साथ, जिस मुल्क में भी ये बैठे हैं, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, सबका जिक्र अज़कार करना कबूल फरमा। और ये जिक्र हम सब के लिए बाइसे बरकत, बाइसे रहमत, बाइसे नजात बना दे। अल्लाह इस दुआ में जो कोई भी शामिल है, ज़ाहिरी तौर पर या बातनी तौर पर, मीडिया पर है या लाइव है ऑनलाइन, अल्लाह सबकी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा, सबका हाथ उठाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें अपने ख़ज़ाना-ए गैब से पूरी फरमा। अल्लाह हमारी गलतियां खताएं माफ़ फरमा, कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी तौबा सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपना फ़क्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाह हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अल्लाह जो भी रजील ताकतें, नेगेटिव फोर्सेस, जादू टूने वार हैं, सब रद्द फरमा। हम बड़े कमज़ोर हैं मालिक, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से दुआएं मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अता फरमा दे, जो आज तक मांगा वो भी अता फरमा दे, जो हमारे दिलों में रह गया वो भी अता फरमा दे, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा दे। अल्लाह हमने अपनी हैसियत व औकात के मुताबिक मांगा, मालिक तू अपनी शान के लायक अता फरमा दे, अपना कुर्ब अता फरमा, इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा, पीरान कबार का फैज़ान अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा, जो हयात है उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र की, हशर की मंज़िलें आसान फरमा। अल्लाह जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा,
हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा। इन वलियों की फीज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहने की तौफीक अता फरमा। इन वलियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन अपने दोस्तों के वलियों के नक्शे कदम पर हमें भी चलते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो हमारे अजीज़ो करबा में से कोई चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अजीम साहब और रिजवान साहब के वालिद ग्रामी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनकी बरसी है, शायद एक आध दिन पहले गुजरी। अल्लाह उनकी भी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह जितनी भी इस महफिल की फीज़ो बरक़ात हैं, जो नेकियां हैं, हम अपने तमाम हाज़रीनों सामईन के अजीज़ो करबा और अबा अजदाद के लिए इसाले सवाब करते हैं हजूर के वसीला से। या अल्लाह कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे ननियाल, ददियाल, ससुराल, हमारी फैमिलियों से जहां कहीं भी कोई भी मर्द, औरतें, बच्चे वफात पा चुके, शहीद हो चुके, दुनिया से रुखसत हो चुके, सबको इसाले सवाब करते हैं, कबूल व मकबूल। जिनके पीछे कोई नहीं पढ़ने पढ़ाने वाला, अल्लाह उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, उनको भी इसाले सवाब करते हैं। अल्लाह कुल उम्मत मुसलमा के आज तक जो भी दुनिया फानी से रुखसत हो गए, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो। जिसने एक बार भी कलमा तैयबा पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अल्लाह बख्श देना उसको। तू बख्शने को पसंद फरमाता है, तू बहुत बड़ा माफ करने वाला, बख्शने वाला है। अल्लाह हजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा देना, जो आज तक आए, जो क़यामत तक आ रहे हैं, अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देना। हमारे आबा अजदाद की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाना। रिजवान साहब, अजीम साहब के वालिद ग्रामी के लिए, वालदा साहबा के लिए, शहजीउद्दीन की वालदा साहबा के लिए, यसीर साहब के, अदील साहब के वालिद साहब के लिए, या अल्लाह जिन्होंने भी आज तक हमें दुआओं के लिए कहा, सब के लिए हम दुआ गो हैं। जिनके भी अजीज़ो करबा चले गए, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। या अल्लाह तेरे अर्श के साए के नीचे उन्हें जगह मिले रोज़े महशर। हजूर की शफात कुबरा नसीब हो, पुल सरात से गुजरना आसान हो, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल हो, और हमारी वहां पे उनसे मुलाकातें हों, हमारी वहां पे उनसे मुलाकातें हों। अल्लाह हम पर अपना लुत्फ़ व करम जारी सारी फरमा दे। हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया, हमारी आंखों की ठंडक बना दे, बख्शिश का सबब बना दे, समा बना दे, खास करम अता फरमा। अल्लाह जो भी आज तक खैर और भलाई की दुआएं मांगी, सब पूरी फरमा। जो सामाईन और नाजरीन हाथ उठाए बैठे हैं, दिली आरजुएं हैं, अल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं मुझ तक नहीं पहुंच सकी, पर तू आलिमुल गायब है, तू सब जानता है। जो हमने दिलों में छुपा रखा है वो भी तू जानता है, तू हमें हमसे बेहतर जानता है। अल्लाह सबकी नेक हाजात पूरी फरमा दे, सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे, सबकी बीमारियां ज़ाहरी बातनी दूर फरमा दे, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे, सबकी औलादों को हदायत वाला बना दे, सबके कारोबार में फरोग और तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह बिलखसूस उम्मत मुसलमान करिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, अपना करम अता फरमा दे। जिन्होंने भी इस दुआ में एक बार भी आमीन कहा हो, अल्लाह झोली खाली ना लेके जाए, ऐसा करम अता फरमा दे। जिसने इस महफिल में बैठ के एक बार भी तेरा नाम पुकारा हो, अल्लाह वो नामुराद ना जाए, फैज याब होके जाए, ऐसा करम अता फरमा दे। अल्लाह तेरे नामे मुबारक की वो हलावतें, वो बरकतें उसको नसीब हों कि उसका हर काम तेरी रजा और मंशा के मुताबिक हो जाए। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद हो, जैसा तू चाहता है कि तेरी मखलूक हो, हमें वैसा बना दे। या अल्लाह हम अपने आप को पेश करते हैं तेरी बारगाह में, किसी काबिल नहीं है, कोई अक्ल, शक्ल, किरदार, अमल, कोई नेकी, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले कि हम जिस पर मान करें और तेरी बारगाह में पेश करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस हम तेरी मखलूक हैं, तू हमारा रब है, तेरे महबूब के हम उम्मती हैं, हमें कबूल फरमा ले, जैसे भी हैं हमें कबूल फरमा। तू साहिब इख्तियार है, साहिब कुदरत है, जिससे चाहे दीन का काम ले सकता है। अल्लाह हमसे, हमारी औलादों से, हमारे साथियों से दीन का काम ले ले।
बहुत सारा दीन का काम ले ले, जैसा चाहता है काम ले ले। या अल्लाह अपना करम अता फरमा दे, अल्लाह अपना करम अता फरमा दे, अल्लाह अपना करम अता फरमा दे। आमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सबको महफिल भी मुबारक हो, जिक्र भी मुबारक हो, तालीमात भी मुबारक हो और आज की दुआ भी मुबारक हो। दिल तो मेरा ये चाहता है कि मैं उसकी बारगाह से मांगता रहूं। वो इतनी बड़ी बारगाह है, वो इतना माइल बा करम है। हमारी झोली छोटी है, तंग है, हमारे अल्फाज छोटे हैं, उसका करम बहुत बड़ा है। मांगा करें, दिल खोल के मांगा करें, जितनी देर दिल करे उसकी बारगाह से मांगा करें, घंटों के हिसाब से दुआएं मांगते रहें। उसको पसंद है बाबा, उसको बहुत पसंद है कि आप उसकी बारगाह से मांगें, दुआएं मांगें। दुआ करना रब ताला को बहुत पसंद है और जो उसकी बारगाह से मांगते हैं वो उन्हें बहुत पसंद करता है। जरूरी नहीं है कि आपने नमाज पढ़ी है तो मांगना, नहीं तो नहीं मांगना। जरूरी नहीं है कि आपने कुरान पढ़ा है तो दुआ मांगना, नहीं तो दुआ ना मांगना। ना यार, ना ना बाबा, जब दिल आए उसकी बारगाह से मांगो। आपको एक छोटी सी दलील दे देता हूं। आपको पता है मकामे अरफात में हज के दौरान वो जो खास पहर है हज का, उसमें क्या मांगते हैं, क्या इबादत है, क्या पढ़ते हैं? हाय, दो इबादत है वहां की, एक रोना और एक दुआएं मांगना। लो, कुछ भी वहां पे पढ़ने का हुक्म नहीं है कि अच्छा भी यहाँ पे खास तौर पर ये इबादत करो। फरमान ये है कि बस उसकी बारगाह में रो, तौबा करो, माफी मांगो, रो, गिड़गड़ाओ उसकी बारगाह में और दुआएं मांगो। जिसको भी लोग देखते हैं कि ये बाशरा है, बुजुर्ग है, सफेद बाल है इसकी रीश में, उसे आगे कर देते, चलो जी हज़रत साहब आप दुआएं मांगे। उसने मांग ली, अब किसी और को पकड़ लेंगे, ये आए जी प्लीज आप दुआ मांगे। वो दुआएं मांगते हैं, वो रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं उसकी बारगाह में। दुआ मांगना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। जिस तरह उसे उसका नाम, उसका जिक्र लेने वाले लोग पसंद है, इसी तरह उसकी बारगाह से मांगने वाले उसे बहुत पसंद है। मांगा करें, मांगा करें, उसकी बारगाह से मांगा करें, वो पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक आपकी और मेरी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। बल्कि एक और राज की बात आखिर पे ये बता देता हूँ, सारी दुआएं कबूल होती हैं, सारी की सारी दुआएं, कोई दुआ पीछे नहीं रहती। बड़ी सादगी से कहूंगा, वल्लाही सारी दुआएं कबूल होती हैं, पर वो अपनी हिकमत से उन दुआओं को ग्रांट करता है। कोई तो दुआएं कहता है कबूल हो गई, ये लो भाई ले लो, अब भी देयर एंड देन, अभी जुबान से आमीन आखिरी कह के आदमी नहीं, फिर एक ग्रांट हो गई, मिल गई। कुछ दुआओं के लिए कहता है ठहर, थोड़ा पेशेंस रखो, देता हूं। ये हिकमतें हैं उसकी, ये चंद हिकमतें हैं जो मैं गोश गुजार कर रहा हूं, अभी बहुत हैं जो मुझे मेरे इल्म में भी शायद ना होंगी। कुछ दुआओं के लिए फरमाता है ठहरो ठहरो देता हूं, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, ये सब्र तुम्हारे लिए बेहतर है। कुछ दुआओं के लिए कहता है नहीं नहीं, ये जो तुमने मांगा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठहर जो, मैं इसका बेहतर नेमुल बदल देता हूं, बेहतर नेमुल बदल देता हूं। फिर बहुत सारी दुआएं आपकी मांगी हुई, आपकी औलाद के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए, बहन भाई के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बेहतर बना देता है। और जो दुआएं फौरी तौर से ग्रांट नहीं करता, उन दुआओं में से बहुत बड़ा एक हिस्सा, बहुत बड़ा एक हिस्सा आखिरत के लिए रख लेता है। इसका मतलब दुआ तो कोई भी रद्द नहीं हुई भाई, वो दुआ का हिस्सा मुझे फौरी तौर से मिल गया, बाद में मिला, दुनिया में मिला, कब्र में मिला, हशर में मिला, मेरी दुआ का रिटर्न तो मुझे मिला। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, या मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, या रिटर्न नहीं मिला, या उसकी ब्लेसिंग नसीब नहीं, उसका फायदा नहीं मिला। तो बाबा दुआएं मांगा करें,
दुआओं से तो बड़ा फायदा होने वाला है, ये तो मुफ्त की कमाई है। नहीं जी, मुझे वो मुश्किल मुश्किल बड़े बड़े अल्फाज नहीं कहने आते, मेरी वोकैबुलरी में इतने अल्फाज नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने अंदाज में सादा अल्फाज में रब से मांगा करें, वो पसंद फरमाता है। उसे पता है कि उसने आपको कितना इल्म दिया हुआ है, वो जानता है कि आप अपने अल्फाज में कितने कवि हैं या कितने कमजोर हैं, वो आपको आपसे ज्यादा जानता है। मांगा करें, जैसे भी जो भी रंग ढंग तरीका सलीका, बस मांगा करें। बच्चों को, अपनी औलाद को, छोटे छोटे बच्चों को दुआएं सिखा दें, उसे को बेटा दुआ करो, चलो देखे ना, दुआ करते हैं हम खाना खाने से पहले, दुआ करते हैं हम खाना खाने के बाद, दुआ करते हैं हम घर से निकलते वक्त, ये दुआएं हैं ना जी, बाथरूम में भी जाने की दुआ है। तो दुआ तो बड़ी कीमती चीज है, मांगा करें। आज की तालीमात इतनी, मैं बता रहा था, आज टाइम बल्कि बहुत ज्यादा हो गया, मैं बता रहा था कि मेरा तो दिल आज ये कैफियत थी कि भी घंटों के हिसाब से आज दुआएं ही मांगते रहे हम। अल्लाह करे कि ये मेरी घंटों की आरजू, ये घंटों की दुआओं की आरजू अल्लाह कबूल फरमा ले और हमें घंटों की मांगी हुई दुआओं का अजर व सवाब अता फरमाए। आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।